Hello everyone, welcome to my channel. My name is Charandeep Singh. So साडा टॉपिक चल रहा सी polynomials, right? CBSE क्लास ਦਾ chapter 2 of NCERT polynomials. ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ polynomial equations ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ equations ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ polynomials ਦੀ ਡਿਗਰੀ and sum of roots, product of roots, that means zeros find ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ and ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ splitting of terms method. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ we have to verify relationship of zeros with any polynomial सिर्फ इससे पॉलिनोमियल एग्जांपल नहीं है श्योर कल पेपर चाहिए बेटा ये एग्जांपल ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਓਕੇ तो ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 4s² - 4s + 1 ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਈ ਨੇ 2023 ਐਂਡ 24 ਓਕੇ ਮੈਥ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ बेसिक वाले में सेम क्वेश्चन 4s² - 4s + 1 उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सेम क्वेश्चन आया है ओके सो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ a polynomial is 6x² - 3 - 7x so we have to verify zeros ओके सो करिए बस स्टार्ट क्लास ठीक है चलो आई होप मेरी सारी रिवीजन चल रही होगी बेटा बिकॉज ओनली अक्टूबर मंथ चढ़ गया नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सिर्फ 4 मंथ से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिवीजन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ओके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लो अपना स्कूल से मोस्टली कंप्लीट हो चुका होगा अगर हो रहा है तो नाल रिवीजन भी शुरू कर दो सेम जो पुराने चैप्टर शुरू तो इसलिए कर रहे हैं कि सब तो पहला रियल नंबर्स में फॉर्मूला ताकि रिवीजन शुरू हो जाए okay so can you start verify the relationship of zeros of polynomial px is equal to 6x² - 3 - 7x beta px means ਇਹ ਸਾਰਾ polynomial x ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ अगर zeros ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ zeros ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ zeros ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ zeros ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ zeros ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਇਸ polynomial ਦੀਆਂ तो करिए so कल ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਟਰਮਸ ਬਾਈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਟਰਮਸ तो सब तो पहला स्टेप कंपेयर px that means the name of polynomial with ax² + bx + c सब तो पहला काम कंपेयरिंग करना हमेशा इतना ही ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ प्रेजेंटेशन ਵਧੀਆ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਆਂਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਗੈਟ a is equal to 6 what is b b is not 3 okay b 3 ਨਹੀਂ ਗਏ थे देखो ax² जो टर्म x के ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ a ਹੈ b है जो x के नाल लगी है इथे x नाल 3 नहीं लगा है x नाल के लगा है -7 दैट मींस हम टर्म्स इंटरचेंज करके गिवन है तो अपना टर्म्स को तुम सही खुद करना है माइंड च कर सकते हो लिख के भी कर सकते हो ओके तुम सीधा लिख सकते हो कि ये इक्वेशन ਤੁਹਾਡੀ बन गई 6x² - 7x - 3 तो ਅਸੀਂ जो कुछ भी करांगे इस पॉलिनोमियल ही करांगे ना कि इस पॉलिनोमियल ओके सो कंपेयरिंग a is equal to 6 b is equal to -7 c is equal to -3 next step multiplication a multiply c that is 6 into -3 is equal to -18 now 18 आ गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 9 3 3 3 1 तीन फैक्टर्स आ गए ने इन तीन फैक्टर्स को यूज करके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने ने जिन्होंने प्लस माइनस करिए तो b टर्म बन जाए आफ्टर प्लस माइनस b टर्म बन जाए मल्टीप्लाई करने तो बाद -18 बन जाए दो कंडीशंस आ रही हैं ये सैटिस्फाई होनी चाहिए ऐसे दो फैक्टर्स
जिन्होंने अगर प्लस माइनस करिए तो बन जाएगा -7 एंड जिन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो सारा आंसर आ गया -18। सो बनाइए फैक्टर, देखो भला की फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट अगर मैंने दोनों मल्टीप्लाई करना ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, जितने फैक्टर्स आ रहे हैं ਤੁਸੀਂ आपस में मल्टीप्लाई प्लस सब कुछ कर सकते हो, माइनस भी डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कर सकते हो। तो देखो 3 2 6 बन गया फर्स्ट फैक्टर, 6 3 आर 18। ओके सो ਇਹਦਾ बन जाएगा 18 आ जाएगा, बट माइनस आना नहीं है वो 6 + 3 9 होंगे, तो 6 - 3 3 होंगे, या आप प्लस माइनस करके भी 7 नहीं ले आ सकते। नेक्स्ट सोचते हैं, अगर मैं इस 2 में इस 3 ना कर दूंगा, अगेन 2 से 6 हो गया, अगेन सेम चीज आ गई। सो की करिए, इन दो नंबर को करिए, 3 3 आर 9 एंड 9 and 2 9 - 2 7 9 * 2 18। दैट मींस दो फैक्टर्स आ निकले 9 and 2, ये दो फैक्टर्स आ गए। नाउ कंडीशन आ रही है कि ना पॉजिटिव केड़ा होएगा नेगेटिव केड़ा होएगा। हमें ना पता 9 - 2 7 होता है, बट पॉजिटिव केड़ा होएगा नेगेटिव केड़ा होएगा। सो देखो सानू सीधा -7, सो -7 माइनस करने तो बाद ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ओके, इफ द ग्रेटेस्ट टर्म हैज नेगेटिव साइन we can get negative as an answer, so we can say it is -9 and +2। so दो फैक्टर्स के हैं -9 and +2। -9 + 2 is -7, -9 * 2 is -18, दोनों फैक्टर्स हो गए। देखिए फैक्टर्स में 6x² - 9x + 2x - 3, सेम तरीका कल वाला। नाउ पेयर्स बनाओ, इन्हें जो कॉमन निकालेंगे, सो दोनों की सेम आ रहा है, x सेम आ रहा है, और 6 और 9 दोनों किस टेबल पे आते हैं, 3 टेबल पे, सो 3 बार आ जाएगा। नाउ करो डिवाइड, 6 divided by 3 is 2, x² by x is x। सिमिलरली 9 by 3 is 3, x ਨਾਲ x कट हो गया, सो ब्रैकेट के अंदर आ गई टर्म 2x - 3। नेक्स्ट वास्ते हम देखो 2x - 3, नेक्स्ट ब्रैकेट ਵਿੱਚ अगेन ਸਾਨੂੰ सेम टर्म चाहिए है 2x - 3। सो फर्स्ट देखो कॉमन आ रहा है कुछ दोनों चों, नहीं आ रहा मींस 1 कॉमन है, अगर कॉमन नहीं आ रहा मींस 1 कॉमन है, सो +1। तो मैं +1 क्यों लिया है, बिकॉज़ ऑलरेडी माइनस साइन ही है अंदर, ਸਾਨੂੰ साइन चेंज करने की लोड़ नहीं है। कल ਅਸੀਂ साइन चेंज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ तो ਆਪਾਂ नेगेटिव बाहर निकाले ਸੀ, आज ਅਸੀਂ प्लस ही निकालेंगे। सो अंदर आ गया 2x - 3 ब्रैकेट ਵਿੱਚ, सो सेम टर्म्स आ गया, अगेन कॉमन निकाल लो 2x - 3 एंड जो कॉमन आ गया लेफ्ट रह गया 3x + 1, जीरोस निकाल लो यानी इक्वल टू 0। सो 2x - 3 भी 0 के इक्वल होएगा एंड 3x + 1 भी 0 के इक्वल होएगा, राइट। सो 2x is equal to 3, x is equal to 3/2। here 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। तो ये सारे दो वैल्यूज आ रही हैं x की, दो वैल्यूज मींस ये सारे दो जीरोस आ रही हैं x की। फर्स्ट इज 3/2, सेकंड इज -1/3। दोनों को फिल करांगे इस इक्वेशन में, चांसेस 0 आ जाएगा। सो दोनों जीरोस आ गया, x 3/2 एंड x -1/3, सो सारा जीरो वाला काम हो गया। ये कितना फर्स्टली इक्वेशन को जस्टिफाई किया, अगर इंटरचेंज करने की लोड़ पै गई तो करनी पैनी काम होते, ठीक है। इसमें कंपेयर हमेशा करना है, ताकि आप लिख रहे हैं कि सानू समझ लग जाए कि आप की करना होता है। a b and c लिखे, a and c को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टर्स के दो फैक्टर्स निकाले, दो फैक्टर्स की कंडीशन सेटिस्फाई कीतियां कि प्लस माइनस करके b टर्म बन जाए एंड मल्टीप्लाई करके और सेम टर्म बन जाए जो कि a * c 0। सेटिस्फाई हो गया, इक्वेशन जो फिल कीतियां, स्प्लिट कर देता उसमें, स्प्लिट में टर्म्स कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू 0 किया, x इन दो वैल्यूज। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है विच, इजी है। उस तो बाद वेरिफिकेशन दा रिलेशन ऑफ 0, ओके आप वेरिफिकेशन करनी है तो फर्स्ट रिलेशंस लिखांगे, फिर आप कर देंगे फर्स्ट रिलेशंस लिखांगे। व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशन, first is sum of zeros is equal to -b over a। इस जीरो से प्लस करो तो -b over a आएगा आंसर, पक्का आएगा, ओके। सो की करो, दो जीरोस गिवन ने, देखो सम करो उसका, ਤੁਸੀਂ अल्फा बीटा लेट कर भी सकते हो, अगर नहीं भी कर सकते तो डिसीजन है।
अगर ऑलरेडी जीरोस गिवन है ना, अल्फा बीटा करना चाहते हो कि ये अल्फा है बीटा है, वो भी कर सकते हो। लाइक दिस इज अल्फा अल्फा, इट इज अवर बीटा। सो तो इसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखना चाहते हो इस तरह से, सम ऑफ जीरोस टू जीरोस में 3/2, सम मींस प्लस, the second root is -1/3। लेफ्ट साइड, राइट साइड देखो, माइनस b, b टर्म कितनी है -7, माइनस ऑफ -7 ओवर a is 6। दोनों साइड से देखते हैं, वेरीफाई कदम होएगा जो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होएगी। ओके, सो ਅਸੀਂ लेफ्ट ਨੂੰ राइट ਦੇ इक्वल करी। सो ये सॉल्व करना कितने आएगा, 3 माइनस 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करना है माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम ले लो, 2 एंड 3 एलसीएम आएगा 6, राइट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ एलसीएम आ गया, ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 6 ਆ ਜਾਏ, 3 ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 3 3 are 9। then साइन ऑफ माइनस 3 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 6 ਆ ਜਾਏ, 2। so 2 1s are 2 is equal to 7/6 सेम राइट साइड पे। so 9 minus 2 क्या होता है, 7 over 6 is equal to 7 over 6। सारी पहली जीरो वेरिएबल, दोनों जीरो सेम आ गए हैं, दैट मींस ये बिल्कुल सही जीरोस निकाले जो ਅਸੀਂ निकाले। 3/2 और -1/3 बिल्कुल सही जीरो। वेरिएबल समझ लगी, सिंपल सम कितना ऑलरेडी पहले वाला ही, जीरोस में माइनस b ओवर a लिखा, जीरोस प्लस कितनी साइड पे माइनस b ओवर a सॉल्व करना शुरू किया। एलसीएम लिया, सॉल्व किया 7/6, -7 ओवर माइनस 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 प्लस हो गए, 7/6 आ गए, ये भी सॉल्व हो गया। सो दैट मींस साडी पहली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई कि सम ऑफ जीरोस इज माइनस b ओवर a। नाउ सेकंड रिलेशनशिप ये किसी की, व्हाट इज सेकंड रिलेशनशिप, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c ओवर a। तो ਅਸੀਂ सेकंड करनी है वेरीफाई, इसे कर देंगे ऊपर। सेकंड वी हैव प्रोडक्ट of zeros is equal to c over a। दोनों जीरोस गिवन है, करो मल्टीप्लाई, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, राइट। c की जगह -3 a 6 करिए सॉल्व। सो 3 ना 3 कट हो गया, आंसर इज -1/2। इधर 3 1 से 3 3 2 6, आंसर इज -1/2। एंड अगेन ये भी दोनों जीरोस भी वेरीफाई हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट सीगा, कोई औखा कॉन्सेप्ट नहीं। सिंपल सम ऑफ जीरोस माइनस b ओवर a दे इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c ओवर a दे। फर्स्ट ही जीरोस निकालना है, दोनों जीरोस आ गए, वेरीफाई करना है। सम वहां से दोनों प्लस करना है एंड माइनस b ओवर a, माइनस बस a b c अपने सही सिलेक्ट करो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में a नु अलग b नु अलग c नु अलग कर सकते हैं। ये चांसेस नहीं, बहुत सारे चांसेस ने बोर्ड को हम कंफ्यूज कर सकता है। स्टूडेंट का की देख रहा है, मेंटल लेवल देख रहा है ना कि स्टूडेंट कितने एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, वो कंफ्यूज कर सकता है। सो तो देखना हमेशा अगर कंपेयरिंग कर रहे हैं ax square plus bx plus c देना, सो मेरी एक्चुअली abc की बन रही है, फिर abc बना के देन स्प्लिटिंग करके फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई, राइट। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। आज का टॉपिक इतना क्लियर है कि रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ਆਪਾਂ किस तरह वेरीफाई करनी है। फर्स्टली m ऐड करना चाहता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड करके देन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपली वेरीफाई करना। इजी सीगा, कोई टफ मैटर नहीं सी। सो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ऐसा डिवाइस क्लास होगी। सो देख लो एक बार स्क्रीनशॉट एंड चल दे दो। सो राइट स्टूडेंट्स, सो लास्ट के होमवर्क थोड़ा ये क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, बहुत सिंपल पॉलिनोमियल है, सेम मेथड लगाओ, जीरोस निकालो एंड वेरिफिकेशन करो, राइट। सो ठीक है, बाकी से कल करांगे नेक्स्ट टॉपिक अपना तो जीरोस ऊपर ही होएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग our channel for more informative videos on the same concept, easy method नाल दिंदे रहांगे। Okay, and then everyone, bye class, bye students।